Hello students. Now today will be the last lecture of this chapter. So today I am going to start with the last topic of this chapter, which is uniform circular motion. Now before talking about uniform circular motion, try to remember the first lecture. In the first lecture I already told you that there are two types of motion, rectilinear motion and circular motion. Rectilinear motion क्या था? If an object travels in a straight path पे अगर ट्रेवल कर रहा है, that motion will be termed as rectilinear motion. But if an object travels on a circular path, then that motion is known as circular motion. So now सर्कुलर मोशन आपको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा तो उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? If an object covers equal distances in equal intervals of time, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब हर 5 सेकंड में सपोज ऑब्जेक्ट 15 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 5 सेकंड में 15, 10 सेकंड में 30, 15 seconds in 45 and so on, then that motion will be uniform motion. Now for this thing to happen, speed of that object should be constant. Speed क्या होनी चाहिए? Constant होनी चाहिए. तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होती है. बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात करते हैं वेलोसिटी. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑन अ सर्कुलर पाथ, कौन से पाथ पे कवर करेगा वो? सर्कुलर पाथ पे, देन दैट मोशन विल बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. Suppose a person is traveling on a straight path with constant speed. कहीं पे भी टर्न नहीं ले रहा है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है. ठीक है, तो यहां पे उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी. वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब स्पीड चेंज हो, या अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, तब वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? अगर डायरेक्शन चेंज हो. जैसे 30 किलोमीटर पर आवर पे सीधे जा रहे थे, और बाद में टर्न ले लिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया. भले 30 किलोमीटर पर आवर पे अभी भी है, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. सो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो. सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो उसकी स्पीड हमने मान लिया कांस्टेंट है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, और द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग. बट सपोज if that person is traveling on a rectangular path with a constant speed, so एक रोटेशन में, even if its speed is constant, then also during one rotation of this field, of this track, that person is changing his direction how many times? 4 times. एक बार यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा, एक बार यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा, एक बार यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा, और एक बार यहाँ भी डायरेक्शन चेंज होगा. Clear? Even if the speed is constant over here, the person is changing direction how many times? 4 times. 4 times direction change होगा, तो 4 times velocity भी change होगी. So here, even if the speed is constant, velocity is changing how many times? 4 times. Now, if I increase the number of sides here, suppose that person is traveling on a hexagonal path. Clear? With constant speed, uniform motion हो रहा है यहाँ पे. So even if the speed is constant over here, the person will change his direction how many times? 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. जितने vertices हैं, उतनी बार direction change होगा. So here, even if the speed is constant, the velocity of that person is changing how many times? 6 times. Again, if I increase the number of sides, how many sides are there? 8. So if a person is
completing one round of this track. Suppose the track is octagonal. ठीक है, 8 sides. So even if he is traveling with constant speed, then also he is changing his direction how many times? 8 times. So here person is changing his direction 8 times. So how many times velocity will change? 8 times velocity will change. Clear? Now, if I keep on increasing the number of sides, what will happen? See, if I keep on increasing the number of sides, तो आपको लगेगा अभी 8 sides हैं, तो ये धीरे धीरे शेप किस में टर्न हो रहा है? सर्कल में टर्न हो रहा है. क्लियर? इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स, तो ये धीरे धीरे शेप किस में टर्न हो रहा है? सर्कल में टर्न हो रहा है. आपने देखा यहाँ पे कितनी साइड्स थी? देयर वर 4 साइड्स. सो कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई? 4 टाइम्स चेंज हुई. यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स. कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई? 6 टाइम्स चेंज हुई. यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? 8 साइड्स. कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई? 8 टाइम्स. सो इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स, द शेप व्हिच आई विल गेट इज अ सर्कल. कौन सा शेप मिलेगा मुझे? सर्कल मिलेगा. सो सर्कल में इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ सर्कल. सो इन अ सर्कल देयर आर नो साइड्स. साइड्स नहीं होती. तो यहाँ पे डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है. यहाँ पे 4 साइड्स, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8. ऐसे साइड्स बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट हो जाए. मींस यहाँ पे साइड्स हो ही नहीं, सिर्फ कर्वेचर हो. सो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी? इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होगी. तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ही नहीं, कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी वेलोसिटी. हर एक पॉइंट पे पर्सन की डायरेक्शन चेंज हो रही है. क्लियर? एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ पर्सन इज चेंजिंग. डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं बताता हूँ. क्लियर? सो द मेन पॉइंट इज, मैंने ये सब डायग्राम्स क्यों बनाए? क्योंकि आपको पता चल जाए कि अगर हम साइड्स बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें शेप कौन सा मिल जाता है? सर्कल. सर्कल में इनफाइनाइट टाइम्स वेलोसिटी चेंज होगी. मतलब वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट होगी नहीं. जैसे वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होती है इतने पार्ट में, यहाँ पे आके चेंज होती, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. इवन दो द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. So, what is uniform circular motion? It is a motion in which an object travels equal distances in equal intervals of time on a circular path. Here, speed is constant, but velocity is not constant. Here, speed is constant, but velocity is not constant. Clear इतना? अब बात करते हैं, अगर आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है, if you want to find distance in this circular motion, उसकी बात करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. नो नीड टू ड्रॉ दीज फिगर्स. यूनिफॉर्म circular motion. ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपको क्या बताया? इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal intervals of time. If an object covers equal distances in equal intervals of time on a circular path, then that motion is termed as uniform circular motion. क्या बोलेंगे इस मोशन को? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ सेकंड पॉइंट,
हमने क्या पढ़ा अभी इससे पहले? डेफिनेशन तो ठीक है हमने पढ़ ली, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। हमने अभी जो एग्जांपल लिए साइड्स के, उससे हमें क्या पता चला? इन दिस मोशन speed is constant, but velocity changes at every point due to change in direction. ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, और 2-3 पॉइंट्स हमें पढ़ने। ओके, हमने अभी बात की चेंज इन डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या होगा? कोई भी पॉइंट पे, सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सो आपका कोई भी पॉइंट पे आप रुक गए तो आपका डायरेक्शन क्या माना जाएगा सर्कुलर पाथ पे? तो डायरेक्शन के लिए एक एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। सपोज you tie a stone to one end of a string, कैसे स्ट्रिंग है, उसके एक एंड पे आपने स्टोन टाई कर दिया, ठीक है, आप उत्तरायण पे करते ही हो ये सब। सो सपोज एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग यू टाइड वन स्टोन, और आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, क्लियर? यू आर रोटेटिंग दैट स्ट्रिंग लाइक दिस, समझ आ गया? उत्तरायण पे सब लोग करते हैं। तो एक एंड पे स्टोन टाई करके उसको घुमाते जा रहे, आप उसको रिलीज करो तो किसी भी एक डायरेक्शन में जाएगा। फिर वापस उठा लिया आपने उसको, वापस घुमा रहे हो, वापस रिलीज करो। ऐसा जरूरी तो है नहीं कि जिस डायरेक्शन में पहले गया था उसी डायरेक्शन में अब जाएगा। तो वो कौन से डायरेक्शन में जाता है वो कभी आपने नोट नहीं किया होगा, बट देखो जिस पॉइंट पे आप रिलीज करते हो, जैसे मैंने ऐसे करके ऐसे छोड़ा, तो उस पॉइंट के टेंजेंट के डायरेक्शन में जाता है। तो अब टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज अ टेंजेंट? It is a line which touches the circle at only one point. It is a line which touches the circle at only one point. सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। तब देखो कैसे, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये लाइन सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है? आप लोग बोलोगे एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, बट लाइन कैन एक्सटेंड इनफाइनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। लाइन इनफाइनेटली दोनों डायरेक्शंस में जा सकती है। सो इट हैज नो एंड पॉइंट, क्लियर? लाइन कैन एक्सटेंड इनफाइनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। तो अगर ये इनफाइनेटली इस डायरेक्शन में आती, मतलब आगे ट्रेवल करती, तो ये तो दूसरे पॉइंट पे कट करने ही वाली है। सो इट इज नॉट अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या बोला मैंने? अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। तो यहां पे लाइन जो मैंने बनाई वो तो एक्सटेंड करने पे दूसरे पॉइंट पे टच कर रही है, तो उसको हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे। तो टेंजेंट क्या होगी वो देखते हैं। सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे टच कर रही है, क्लियर? अब आप इसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर दो, ये क्या करेगी? एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो ये क्या है? टेंजेंट है। तो सपोज आपने स्ट्रिंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और इस पॉइंट पे आके छोड़ दिया, तो वो कहां जाएगा? उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में। सपोज इस पॉइंट पे आके छोड़ दिया, तो यहां पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये होगी। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो इधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो इधर जाएगा। सपोज मैं उसको घुमा रहा हूं और जब मैंने रिलीज किया तो पॉइंट उसके ऊपर कौन सा था? ये वाला था, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर? सो कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में कहां पे होता है? उसकी टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। ये यहां पे एक पर्सन है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, ठीक है? अगर क्लॉकवाइज है तो वो इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो इधर आएगा।
सो डायरेक्शन क्या हो गया पर्सन का, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a person at any point on a circular path is in the direction of tangent, is in the direction of tangent at that point. समझ आ गया. कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कौन सा होगा, उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे उस टेंजेंट के डायरेक्शन में. ठीक है. लास्ट नहीं, डिस्टेंस और स्पीड फाइंड करना बाकी है. सो अगर आप सर्कुलर पाथ पे एक रोटेशन कंप्लीट करते हो, सपोज इफ आई एम कंप्लीटिंग वन रोटेशन ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, उसके सर्कमफेरेंस जितना. सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r. This you have already studied. Circumference of circle is 2 pi r. So if I am traveling one rotation on this circular path, if I am covering one rotation on this circular path, the distance which I am traveling is equal to 2 pi r. कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं मैं, 2 pi r जितना. अगर दो रोटेशन ट्रेवल करता हूं तो कितना करूंगा, 2 into 2 pi r. 3 करता हूं तो 3 into 2 pi r. तो डिस्टेंस क्या होता है, n into 2 pi r, where n is the number of rotations. So speed क्या होती है, distance upon time. So n into 2 pi r divided by t. ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. क्लियर. सो इसके साथ हमारी थ्योरीज कंप्लीट होती है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. टेंजेंट वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन देखना है तो उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनानी है, और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगी वहीं पे उस ऑब्जेक्ट या पर्सन का डायरेक्शन होगा. उसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था स्ट्रेंथ से. ठीक है. राइट दिस एंड देन वी विल सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स. बट बिफोर दैट आई विल मेक यू राइट ऑल द फॉर्मूलाज, जिससे आप एक जगह पे सारे फॉर्मूले लिख सको. Pause this and write this. Okay. Now everyone, open page number 112. But before that, we have to write all the formulas. Okay. तो फॉर्मूले लिख लेते हैं. चलो पहले फॉर्मूला. First formula is the relationship between speed, distance and time. So speed is distance upon time. Sorry. Instead of writing this in symbols, write this in statements. Speed is distance upon time and velocity is displacement upon time.
Third, average speed is total distance upon total time. Total distance upon total time. Fourth, average velocity. एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ा था हमने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म. मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी है या कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. बट एक स्पेशल केस है जो मैंने आपको नहीं बताया, फॉर्मूले के टाइम में बताने वाला था. वो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है या ये बोला है कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस बी बाई टू व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. तो कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करें? अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ये वाला, कुछ भी नहीं लिखा है तो ऊपर वाला. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी है, सपोज एक्सेलरेशन इज 6, तो मान लेना है कि एक्सेलरेशन क्या यूनिफॉर्म, तभी तो 6 दिया है कि 6 जितना एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है. एक्सेलरेशन कितना है? 6 है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हो या लिखा हो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो नीचे वाला, वरना ऊपर वाला. नेक्स्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी. सेवेंथ, v स्टडीड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो क्या था? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as equals to v square minus u square. Then we studied for circular motion s equals to n into 2 pi r for circular motion. And last, speed equals to n into 2 pi r by t, again for circular motion. So इतने फॉर्मूले हैं आपके स्टार्टर में. There are 11 फॉर्मूले. ओके, सो थ्योरीज आपको पता चल गई. ग्राफ्स हैं, थ्योरी ग्राफ्स पढ़ने थे आपको. थ्योरी में 3 इक्वेशंस का डेरिवेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा ही जाएगा वो. व्हेनेवर you will have a test of this chapter, that question will be asked 100%. Okay, so write all these formulas, then we will solve the remaining questions of exercise. Page number 112. Question number 1. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. देखो an athlete completes one round of a circular track of diameter कितना दिया है? 200 meters. तो रेडियस कितना होगा? 100 meters. I hope this is clear. Diameter is twice of radius, ये तो बताने की जरूरत है नहीं. So radius is half of diameter. एक पूरा राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 40 seconds में. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. अब डिस्टेंस का तो फॉर्मूला हमने लिखा है, क्या है? n into 2 pi r. n is the number of rotations. So time taken to complete one round
is 40 seconds. Total time कितना 2 minutes 20 seconds. 2 minutes मतलब 120 प्लस 20 कितना हो गया 140 seconds हो गए. तो अगर आप 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट करते हो तो 80 सेकेंड्स में कितने करोगे 2, 120 में कितने करोगे 3. तो आप क्या कर रहे हो डिवीजन कर रहे हो. तो नंबर ऑफ रोटेशंस, देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशंस आपको कैसे मिलेंगे, स्मॉल एन फाइंड करना पड़ेगा. तो वो कैसे मिलेगा, टोटल टाइम 140 डिवाइडेड बाय 1 राउंड के लिए कितना है 40, आंसर 3.5. कितने राउंड्स लेगा पर्सन 3.5. सो therefore distance covered क्या होता है फॉर्मूला n into 2 pi r. n कितना है 3.5 into 2 into what is pi, pi is 22 by 7 and radius कितना है 100. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. 3.5 को कैसे लिख सकते हैं 35 by 10 into 2 into 22 by 7 into 100. 5 2s are 10. 5 2s are 10 into 22, 2200. 5 2s are 10 into 22, 220 into 10, 2200 meters. आ गया डिस्टेंस. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. सो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चाहिए. सो इनिशियल पोजीशन हम सपोज कर लेते हैं कि वो कहां पे था, ए पे था. सपोज इनिशियली पर्सन वॉज एट ए. कहां पे था, ए पे था. आफ्टर 3.5 रोटेशंस, कितने रोटेशंस किए 3.5. डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल पोजीशन चाहिए और फाइनल पोजीशन चाहिए. सो सपोज इनिशियली पर्सन वाज एट ए. सो आफ्टर 3.5 रोटेशंस पर्सन विल रीच एट, कहां पे पहुंचेगा. एक रोटेशन कंप्लीट की ए पे आया, 2 कंप्लीट की ए पे आया, 3 कंप्लीट की ए पे आया. अब आधी कंप्लीट करनी है तो कहां आएगा, उसके सामने आ जाएगा. 3.5 है. आफ्टर कंप्लीटिंग 3 रोटेशंस ही विल रीच एट ए. बट 0.5 मींस हाफ रोटेशन तो कंप्लीट करना है, तो हाफ कंप्लीट करके वो कहां आ जाएगा, सामने आ जाएगा. तो ही विल रीच एट बी. Now what is displacement? Displacement is the shortest distance between initial position and final position. तो shortest distance हमेशा क्या होता है, initial और final के बीच में क्या बना दो, एक straight line. तो displacement क्या हो गया, कितना हो गया AB. AB मतलब diameter, diameter कितना है 200 meters. क्वेश्चन कंप्लीटेड. AB डायमीटर था, डिस्प्लेसमेंट कितना, किसके इक्वल है, डायमीटर के. सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 200 और डिस्टेंस कितना आ गया 2200. पॉज दिस एंड राइट दिस. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. नाउ सी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ क्वेश्चन, दे आर बेस्ड ऑन ग्राफ. Fifth, sixth and eighth question they are based on graph. So जो graphical questions हैं that we will solve when we will meet in the tuitions. ठीक है, when we will meet face to face, at that time I will make you solve these graph based questions. अभी online graph based questions समझने में थोड़ा problem होगा. So these 3 questions I will make you solve later. Okay, so no need to worry about these 3 questions. So after writing this, see question number 9th. Pause this and write this, then see question 9th. State which of the following situations are possible and give an example for each of these. 9th question of your NCERT textbook exercise, page number 113. Page number 113.
ओके, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेट होते ही जा रहा है, बट उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई कोई पॉइंट पे, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई हो बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप खुद सोचो, when an object is thrown upwards, it moves with a constant acceleration, क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव हो रहा है, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ड्रॉप करते हैं तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है, बट ऊपर थ्रो करते हैं तो वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बट इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, क्योंकि एक बार आपने थ्रो कर दिया उसके बाद आप उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग अपने आप उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। So whenever an object is thrown upwards or it is dropped downwards, it always experiences constant acceleration. जो आप 10th चैप्टर में पढ़ोगे, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, इसलिए यहाँ पे आपको सब में 10 दी थी। जहां पे भी ड्रॉप और थ्रो वाला केस है उसमें एक्सेलरेशन आपको 10 दिया है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है 9.8, तो उसको राउंड ऑफ करके कितना देते हैं आपको, 10 देते हैं। So जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज and at the maximum height its velocity will become zero। तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है ही, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। यहां से नीचे आएगा तो भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही है उसका, बट अब नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, ऊपर जा रहा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव था। सो एग्जांपल क्या होगा, क्वेश्चन 9th का फर्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown upwards, then at maximum height its velocity is zero, but acceleration is uniform, ओके ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो जैसे सन है और ये अर्थ है, अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अर्थ तो हम मान लेते हैं कि ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर है, वैसे तो थोड़ी इलिप्टिकल होती है, बट अभी 9th में आप कंसीडर करो इट इज सर्कुलर। सो अर्थ का डायरेक्शन कहाँ होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, बट वो एक्सेलरेट क्यों, और उसको वो रिवॉल्व क्यों कर रहा है, सन की ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो है वो किसकी तरह ट्रीट होगा, रेडियस की तरह। किसकी तरह ट्रीट होगा, ये ऑर्बिट की रेडियस की तरह, और ये क्या हो गया, टेंजेंट। आप 10th स्टैंडर्ड मैथ्स में कंसेप्ट पढ़ोगे कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब रेडियस और टेंजेंट में हमेशा कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो आपको यही बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट एक कोई डायरेक्शन में जा रहा हो तो अर्थ उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में ही जाती है, कोई पॉइंट पे टेंजेंट ही बनेगा, बट एक्सेलरेशन कहां से मिल रहा है, सन से, सन की ग्रेविटी से। तो एक्सेलरेशन उसका उसके डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर। समझ आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी के इन्फ्लुएंस में, फॉर एग्जांपल मिक्सर ग्राइंडर है, उसके अंदर भी आप सर्कुलर मोशन करो तो जो पार्टिकल्स हैं वो टेंजेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट उसको फोर्स कहां से मिल रहा है, बीच से। ठीक है, सो वो भी क्या हो जाएगा, यही एग्जांपल है। बट आप यहाँ पे ये लिखोगे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो अर्थ एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन उससे क्या है, परपेंडिकुलर। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड का, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। Clear? So this was question 9. Now question number 10. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km.
रेडियस कितना दिया है 42,250 किलोमीटर्स and it takes 24 hours and it takes how much time 24 hours. You have to find the speed. Speed का फॉर्मूला क्या था n into 2 pi r divided by t. अब यहां पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है मीटर और सेकंड में, क्योंकि पीछे आंसर आपको किलोमीटर पर सेकंड में दिया, बट हम एक आंसर की तो लेके बैठते नहीं, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है. जब भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है उस टाइम पे कंपलसरी होता है टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड, बट जब एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो आप किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हो. तो सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. कितने रोटेशन किए? सिर्फ एक. पाई क्या होता है 22/7. रेडियस कितना है 42,250 इंटू 24. ओके, solve this, you will get the answer. So this you can do by your own. सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं. So we have already completed all the sums. So now you open page number, just a minute. After completing this, after calculating this, open page number. Some in-text questions are remaining, I guess. You have to open page number 102. In-text question 1. Page number 102, in-text question 1. Distinguish between speed and velocity. So it is very simple. You can write it by your own. Speed, rate of distance covered. ठीक है? Velocity, displacement per unit time. Definition हो गई. Second, formula लिख दो. Speed equals to distance upon time. Velocity equals to displacement upon time. Third, speed is always positive, velocity can be negative. Okay, speed is always positive, velocity can be negative also. Speed requires only magnitude, velocity requires both magnitude and direction. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. तो जो स्केलर और वेक्टर के डिफरेंस थे वो तो सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, प्लस स्पीड की डेफिनेशन और स्पीड के फॉर्मूले, वेलोसिटी के फॉर्मूले, वेलोसिटी की डेफिनेशन. क्लियर? सेकंड, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम होंगे? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? सेम हो. कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होता है? जब ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज ना करे. ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पे अगर मोशन कर रहा है एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सपोज ये 300 मीटर्स है तो डिस्टेंस भी 300 है, डिस्प्लेसमेंट भी 300 है. सो इन दिस केस एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. सो व्हाट यू हैव टू राइट, लिसन, you have to write average velocity will be equal to average speed if object is moving on a straight line and it does not change its direction. क्या लिखना है? Average velocity will be equal to average speed if an object is moving on a straight line and it does not change its direction. ठीक है? Third, what does the odometer of an automobile measure? Odometer क्या measure करता है? Distance covered. Odometer of an automobile measures the distance covered by that vehicle. What does the path of an object look like when it is in uniform motion? Straight line. Uniform motion में होगा तो straight line, क्योंकि uniform motion में speed velocity हमने constant बताई है. Uniform circular motion नहीं बोला है आपको. So straight line path.
What does the path of an object look like when it is in uniform motion? So straight line. Answer. Fifth question. During an experiment, a signal from a spaceship reaches the ground station in 5 minutes. Fifth is a numerical, तो वो करना पड़ेगा. कितने टाइम में पहुंचता है? 5 मिनट्स में. 5 minutes means 5 into 60 seconds. So 300 seconds. What was the distance of the spaceship from the ground station? Distance find करना है. Speed आपको दी है. Speed कितनी है? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Clear? तो देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है. व्हाट वाज द डिस्टेंस? सो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है? 3 into 10 raised to 8. टाइम क्या है? 300. Now this 300 can be written as 3 into 100. क्या लिख सकते हैं? 3 into 100. 3 3 जा क्या हो गया? 9. 10 raised to 8 into 100. 100 means 10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर और 10 raised to 8 क्या हो जाएगा? 10 raised to 10. When the base are same, the base is same, powers will get added. 9 into 10 raised to 8. 9 into 10 raised to 10 meters. This is the distance of the spaceship from the ground. Now open page number 107. तो पेज 107 के कंसेप्ट तो मैंने आपको लिखवा ही दिए हैं, बट एक बार देख लेते हैं. ओके. व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाया था, तो क्या था? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो यही मैंने आपको लिखवाया था. इट इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग upwards passing through origin. तो यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने आपको नेचर लिखवाया. नॉन यूनिफॉर्म में नेचर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म तो कैसा होता है? जिगजैग होता है. ठीक है, इट इज अ जिगजैग लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नेचर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a line parallel to time axis? Distance time graph constant horizontal है. V versus T ग्राफ horizontal होता तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, बट यहाँ तो S versus T horizontal है. तो सपोज करो ये 20 मीटर है, तो जीरो पे भी वही था 20 मीटर के डिस्टेंस पे. 10 सेकंड्स पे भी कितने डिस्टेंस पे? 20 मीटर के डिस्टेंस पे भी. 20 सेकंड्स पे भी कितने डिस्टेंस पे? 20 मीटर. 30 सेकंड्स के बाद भी कितने डिस्टेंस पे? 20 मीटर. मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव ही नहीं हो रहा है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. इट मींस दैट ऑब्जेक्ट is at rest. Object is not moving, तभी तो डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है. डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट. क्लियर. थर्ड, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह स्पीड टाइम ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल हो तो स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड कांस्टेंट, यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट था, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था. अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. फोर्थ, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? यहां पे लिख रहा हूं.
एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी ऑन y एक्सिस इंटू x एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? एरिया अंडर द कर्व। तो मैंने क्या बोला था, y और x को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। कैसे होगा? v इक्वल्स टू एस अपॉन टी होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? क्वांटिटी ऑन y एक्सिस इंटू क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। So it is given that v is velocity here and t is time here. So velocity into time will be displacement. तो लास्ट का आंसर आपका क्या है? Displacement. Okay, we have completed all the questions. Only 3 graph-based questions are remaining. Okay, so we will solve those questions when we will meet the tuitions. Till then, revise this chapter. Okay, the most important question of this chapter will be the derivation of 3 equations of motion. Now for the numericals, what I am saying, just write down these numericals once from the video, and then without looking into the textbook, just refer to the question and try to solve these numericals by your own one more time. Okay, इससे आपका confidence भी build up होगा और chapter भी prepare हो जाएगा. So thank you and wait for the next video. In the next video I will start with chapter number 9. Thank you.